इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, इस वक्त जानते हैं कि आम आदमी की क्या राय है मुल्की सूरत हाल के बारे में। अगर मेरे वस च हुंदा मैं खुद कशा ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। अदालत तारीख पर तारीख देती है, अब फैसला मेरी अदालत में होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की ना है जनाब? मोहम्मद इमरान सर। इमरान साहब की समझते हो कि मुल्की हालात किस पासे जा रहे हैं? सर ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ, ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰ ਰਲ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ਾ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੂਰੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਅਗਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੰਦ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੰਦ ਸਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਘੰਟੇ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮੈਮੋ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਤੇ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਦਲੀਆ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦਾਰਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। हमने एक अरसा से अदलिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा रखी थी क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अपने मुकदमात के इंसाफ के लिए मारी मारी ढूंढ रही थी, इंसाफ की तलाश में अदलिया को ढूंढ रही थी। लेकिन अचानक नाज़रीन हम क्या देखते हैं कि 3 अप्रैल छुट्टी वाले रोज़, इतवार के रोज़ 5 मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में नमूदार होती है। नाज़रीन ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, लेकिन इससे पहले नाज़रीन हम जानेंगे कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में मुकदमात हैं जिनका आज तक फैसला नहीं हो सका। उनमें कुछ मुकदमात बहुत अहम थे जिनका फैसला 0/0 हुआ। तो नाज़रीन आज जानते हैं कौन कौन से मुकदमात हैं। नंबर 1, सानिया मॉडल टाउन का मुकदमा, 12 मई कराची का वाक़या, एमल कांसी का मुकदमा, रेमंड डेविस का मुकदमा, मॉडल गर अयान अली का स्कैंडल, मैमू स्कैंडल, टॉन लीग स्कैंडल, हसैन अफगानी का स्कैंडल, मिसिंग पर्सन शर्जील मेमन जिसने एक साबका चीफ जस्टिस को मामू बना दिया, आहद चीमा और फवाद हसन का केस, साफ पानी का स्कैंडल, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का स्कैंडल, कायद-ए-आज़म सोलर पावर का स्कैंडल, मेट्रो बस रिकॉर्ड जलने का केस, शाहरुख चितवई का केस, अरसलान इफ्तिखार का केस, जस्टिस फाइज ईसा का केस, कलभूषण यादियों का केस, सस्ती रोटी तंदूर का केस, MQM के बाबर गोरी का केस, ताहिर रसूल ब्लॉगर्स का केस, असगर खान केस, मुंशी इसाक डॉलर का केस,
बल्दिया कराची का केस, बलोचिस्तान राजस्थानी का केस, LNG का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल। नाज़रीन, आपने याद होगा 9/11 का वाक़या, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ ने एक कॉल पर एटमी ताकत होने के बावजूद अमेरिका को सुपर पावर मानते हुए तमाम के तमाम अड्डे दे दिए और पाकिस्तान को बाद में दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करवा दिया। नाज़रीन, इसमें हमारे बहुत से हुकूमती अदारे, बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसियों के, अफवाज पाकिस्तान के बहुत सी शहादतें हुई, लेकिन पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ। नाज़रीन, आपने उस बाद देखा होगा एबटाबाद उसामा बिन लादेन का जो कार्रवाई डाली गई थी अमेरिका की तरफ से उसको पकड़ने की, और उसमें नाज़रीन वो एक डमी कार्रवाई थी, जिसमें ओबामा ने बाद में कहा कि उस कार्रवाई के बाद जिस वक्त हमने उस दौर के सदर जरदारी को फ़ोन किया तो मेरे लिए बड़ी हॉट कॉल थी, लेकिन उल्टा रिस्पॉन्स आया और जरदारी साहब ने उल्टी मुबारकबाद दी। क्यों? कि हम लोग उनके ग़ुलाम हैं, अमेरिका के ग़ुलाम हैं। नाज़रीन, अभी रिसेंटली मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है मियाँ शबाशी साहब और उनके बेटे के ऊपर, और उसके ऊपर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नाज़रीन, आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले, अगर मुझे याद पड़ता है तो कमो बेश हिंदुस्तान की एक फिल्म थी दामनी, जिसके अंदर तारीख पे तारीख, अदालत तारीख पे तारीख देती है, और उस लड़की जिसके साथ वो रेप केस होता है उस पे जनाब बजाय उसको इंसाफ मिलने के उसकी इज़्ज़त उछाली जाती है। तो नाज़रीन, वो तो फिल्म थी जिसमें सलीम देवल ने कहा कि जसब बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जसब नहीं, अब फैसला मेरी अदालत में होगा और फैसला मैं खुद करूँगा। नाज़रीन, वो तो फिल्म थी, लेकिन हकीकत कुछ और है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में अदालतों ने भी कुछ ऐसा ही सिलसिला किया हुआ है। आप जिस वक्त किसी भी पाकिस्तान की किसी भी अदालत में जाते हैं, किसी भी ज़िले के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, तो आपको वहाँ पर खाली साए नहीं, वो तो पहले ही बेचारा जो है ना बेचारा मरा हुआ होता है। आपको वकील भी भेड़ बकरियों की तादाद में नज़र आएंगे और कोई फैसला नहीं हो पाता। नाज़रीन, ये था पाकिस्तान का एक सामिया। नाज़रीन, यहाँ अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर और सिफारिश हो तो इतवार के रोज़ भी रात के अंधेरे में अदालत फैसला सुना देती है, लेकिन कमज़ोर और गरीब तबका इंसाफ की तलाश करते करते आहर कब्र तक पहुँच जाता है। और नाज़रीन, इमरान खान ने सही कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में है। यहाँ गरीब आदमी के लिए कानून फ़िरौन और हज़ारों बेगुनाह कैद में और गुनाहगार जमानतों पर हार जाते हैं और बाहर आकर विक्ट्री का निशान बनाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या सिस्टम है मेरे पाकिस्तान का। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का मीडिया जहर उगल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी नाजुक सिचुएशन है। एक तरफ सुपर पावर का इन्फ्लुएंस और उनके अमेरिकी कॉन्सुलेट हमारी हर जमात की अपोजिशन जमात से मिल रही है, और अभी ये जो फ़ैसला आया है नाज़रीन, तो आप देखें कि 5 जजों ने ये फ़ैसला दिया और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपोजिशन जमात की एक पार्टी के समधी भी हैं, उनके एक MNA के ससुर भी हैं। नाज़रीन, ये तो बात की बातें हैं कि फ़ैसला सही है या गलत, मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया कब गरीब आदमी को मिलेगी। नाज़रीन, अगर अमेरिका और नेटो पावर्स सुपर पावर होती और नेटो पावर की अफवाज जिन्होंने 22 साल अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन आखिर क्या हुआ कि तालिबान ने 22 साल के बाद अपनी जो अफ़गानिस्तान है उसको दोबारा से उनसे छीन लिया और दोनों सुपर ताकतें रुसवा होकर वहाँ से निकली। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी ताकत है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान रमज़ान के महीने में नाज़रीन बना है। नाज़रीन, पाकिस्तान अल्लाह यहाँ सुपर पावर एटमी ताकत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का बाल भी दुका नहीं होगा। एक वक्त आएगा कि जो गद्दार हैं, एक वक्त आएगा जो पैसे के पुजारी हैं,
ان کو سزا بھی ملے گی اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں رسوا کرے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے، پاکستان زندہ باد، اللہ ہم سب کا امن ناصر۔